کچھ لوگ اتنے بدقسمت ہوتے ہیں کہ گھنے درختوں کے سائے میں بیٹھنے کے باوجود سورج کی تپش سے جھلستے رہتے ہیں۔ ماں ایک سایہ دار درخت کی مانند ہوتی ہے جو اپنی اولاد کے سکھ کی خاطر خود ساری زندگی دھوپ میں جلتی رہتی ہے، لیکن بچوں کو چھاؤں مہیا کرتی ہے۔ مگر قلعہ دیدار سنگھ کے علاقے نئی آبادی نظام آباد میں ایک ماں اپنی جوان اولاد کے ہاتھوں تنگ تھی۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر نے دیکھا کہ ایک 10-11 برس کا لڑکا گھر سے باہر نکلا تو اس کی ماں اسے کچھ تاکید کر کے دروازہ بند کرتی نظر آئی۔ لڑکا بوجھل قدموں سے چلتا ہوا سڑک پر آیا تو ڈھابے پر لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ گرم گرم روٹیاں دیکھ کر بچے کی آنکھ میں محرومی کے آنسو آ گئے تھے۔ پھر وہ سڑک پر چلنے لگا۔ کاریں، موٹر سائیکلیں ہارن بجاتے ہوئے گزر رہی تھیں۔ پھر وہ ایک بازار میں پہنچا جہاں ایک چھپر کے نیچے ایک موچی اپنے کام میں مصروف تھا اور گاہک بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکا چپ چاپ موچی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ موچی کی نظر اٹھی تو وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ ہاں بھائی، گاہک چلا گیا تو موچی اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا۔ اب تیری اماں نے کون سی نئی فرمائش کر دی ہے؟ ابا وہ اماں کہہ رہی تھی کہ نا ابا سے پیسے لے کے آٹا لے آؤ، آٹا ختم ہو گیا۔ تیری اماں کا نا پیٹ نہیں بھرے گا کبھی بھی۔ موچی نے اپنے کرتے کے اندر بنیان کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور گن کر کچھ پیسے بیٹے کے حوالے کر دیے۔ یہ لے، اماں کو دے دیو اور بول دیو کہ ابا آ کے شام میں خرچے کا پورا حساب کرے گا، سمجھے نا؟ کہاں جا رہے ہیں یہ پیسے؟ اور ہاں، دادی کیا کر رہی تھی؟ اور دادی تو ابا اماں کو چپ کرا رہی تھی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا تیری ماں کو جو وہ رو رہی تھی؟ پتا نہیں ابا، میں گھر ہی آ رہا ہوں۔ چل ٹھیک ہے، تو جا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ موچی عرفان کی 16 سال پہلے سیالکوٹ کی رہائشی شازیہ سے شادی ہوئی تھی۔ اس کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ آمدنی مناسب تھی لیکن گھر کا خرچہ پورا نہ ملنے پر اکثر بیوی سے جھگڑا رہتا تھا۔ ایک دن ہوا یہ کہ زوردار بارش کے بعد عرفان کے گھر میں پانی بھر گیا۔ اس دن عرفان بھی گھر میں موجود تھا کہ اچانک بجلی بھی چلی گئی۔ غارت کریں ان بجلی والوں کو، جب دیکھو بند کر دیتے ہیں۔ ارے بہو، موم بتی ہو تو جلا دے۔ ارے امی، ایک ہی موم بتی تھی، وہ تو کل ہی جلا دی میں نے۔ اوفو، عرفان، ارے عرفان کہاں ہے؟ کیا ہوا؟ کھانا نہیں بنا ابھی تک؟ کھانے کو چھوڑ، تجھے پتا ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں، ہر وقت بجلی غائب ہو جاتی ہے، کم سے کم گھر میں موم بتی لا کے رکھ لے۔ ارے اماں بس کر دو، کیا چوری کروں، ڈاکے ڈالوں میں؟ اتنا کاروبار ہے میرا، پورا گھر چلاتا ہوں میں۔ جب میں اس کو خرچے کے پیسے دے کے جاتا ہوں تو 10 روپے کی موم بتی نہیں منگائی جاتی تجھ سے؟ توفیق نہیں ہوتی تیرے کو؟ عرفان کی بیوی نے دیا روشن کیا تو شبیر نے دیکھا کہ عرفان کے بچے سہمے ہوئے ایک چارپائی پر بیٹھے تھے اور چولہے میں آگ بجھ سی رہی تھی۔ شازیہ دیے کی روشنی میں چولہے تک گئی اور اسے بارش سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ چولہے میں پھونکے مار مار کر کھانسنے لگی تھی۔ کیوں آگ جلا رہی ہے؟ بجلی آ جائے تو کھانا پکا لینا۔ نہیں اماں، وہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں ابھی پکا دیتی ہوں، ان کو بھوک لگی ہے نا۔ ارے بس رہنے دے، اس کی بھوک کی فکر نہ کر۔ اسے کون سے بچوں کی فکر رہتی ہے جو ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے تو؟ او اماں بس کر دو، بس۔ یہ تم نے اس کو سر پہ بٹھا رکھا ہے، سمجھی نا؟ یہ تم میرے گھر کو تباہ کر رہی ہو، برباد کر رہی ہو۔ کہیں کا نہیں چھوڑو گی تم ہمیں، یہ بتا رہا ہوں میں تمہیں۔ میں کون ہوتی ہوں تیرا گھر برباد کرنے والی؟ ارے اپنے گھر کو برباد کرنے کی ذمہ داری تو خود تیری ہے۔ ساری حرکتیں جانتی ہوں میں۔ اچھا، کیا حرکتیں جانتی ہو تم؟ کیا کیا ہے میں نے؟ مجھے بتاؤ تو ذرا۔ بس رہنے دے، زیادہ میرا منہ نہ کھلوا۔ شازیہ، جا کے وہ چادریں اتار لے، بھی بارش ہو جائے گی تو پھر بھیگ جائیں گی دوبارہ۔ جی امی۔ اب عرفان تم جا کے موم بتی تو لا دو۔ او بھائی بس کر دے، گھٹنوں گھٹنوں پانی بھرا ہوا ہے باہر، جا کے دیکھ لے۔ اس عمر میں اگر گر گیا نا تو ہڈی بھی نہیں جڑے گی، سمجھی نا؟ یہ سارا دن پڑا رہتا کہ اسے نہیں بھیج سکتی تو؟ اوے یاسین کھڑا ہو، جا کے موم بتی لے کے آ، نکما کہیں کا۔ یہ کہاں سے جائے گا؟ تم چلے جاؤ یا پھر آؤ پیسے مجھے، تو میں جاتی ہوں۔ او بس کر دے، بس زیادہ فلمی ہیروئن بننے کی کوشش نہ کر۔ میں جانتا ہوں تم دونوں کو، ہمیشہ مجھے نیچے دکھانے کا ہی کام کرتے ہو تم۔ جا رہا ہوں میں، لے کے آ رہا ہوں۔ اچھا جا، خراب کر دیا ہے۔ اے بجلی والوں، بجلی کھول دو۔
عرفان باہر نکلا تو پانی سے ہوتا ہوا ایک گلی کی طرف مڑتا دکھائی دیا. وہ موبائل فون کی ٹارچ کی روشنی میں چل رہا تھا. تنگ دستی کی وجہ سے شازیہ اور اس کے شوہر کے درمیان لڑائی جھگڑا تو اکثر رہتا ہی تھا، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد شازیہ کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر نشہ کرتا ہے تو دونوں میاں بیوی میں مار کٹائی تک کی نوبت آ گئی. شبیر نے دیکھا کہ عرفان اپنے ٹھیے پر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے بارش کا پانی جمع تھا. عرفان کا ایک دوست پائچے اوپر کر کے اسی پانی سے گزر کر عرفان تک پہنچا. لے بھائی 2 سگریٹوں کا مال لے کر آیا ہوں. لے اور 500 روپے نکال. کیا دماغ خراب ہو گیا؟ 2 سگریٹوں کا مال اور 500 روپے کا؟ ابھی پرسوں تو نے 200 روپے کا لا کے دیا تھا. او بھائی پیچھے سے ہی مہنگا آ رہا ہے اور مال ہے بھی نہیں، شارٹ ہے مال. اور یہ مال بھی وہ نہیں ہے جو تو نے پرسوں لا کے دیا تھا. پرسوں والا تو اچھا مال تھا. بے یہ اس سے بھی اچھا مال ہے. تو پیسے نکال یار، 500 روپے دے. پیسے تو یہ لے، ہر وقت پیسے پہ جان دیتا ہے، مگر مجھے مال صحیح نہیں لگ رہا ہے، یہ میں تو یہ بتا رہا ہوں. بے یہ اس سے بھی اچھا مال ہے، بتا رہا ہوں. اچھا چل بیٹھ، چائے منگاتا ہوں. بچے آیا چائے منگاتا ہوں میں تیرے لیے. دیکھتا ہوں آج پتہ چل جائے گا مال اچھا ہے یا برا ہے، کیونکہ یہ کل بتاؤں گا. منگاؤ چائے منگاؤ. چائے منگاتا ہوں. اور سنا؟ ابے یار میرا فون آ رہا ہے، میں چائے تیرے سے بعد میں پی لوں گا، مجھے چلنے دے یار. اچھا چل خیر ہے، ٹھیک ہے. اب میں شام میں دیکھتا ہوں، پھر تو یہ بتاؤں گا مال کیسا ہے. عرفان ٹھیا چھوڑ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا. گھر پہنچا تو اس کی بیوی اپنی بیٹی کو کچھ سمجھا رہی تھی. ہاں بیٹا تمہارے ابا کو آنے دو، کل تمہیں اسکول کی فیس کے پیسے مل جائیں گے. اماں ٹیچر کہہ رہی تھی اگر کل فیس نہیں دی تو پھر اسکول میں بیٹھنے نہیں دیں گے. اسی دوران عرفان گھر میں داخل ہوا تو وہ نشے کی سی حالت میں تھا. ارے بھائی کیا بات ہے، کون نہیں جا رہا ہے اسکول؟ تمہاری بیٹی کی اسکول کی کل آخری تاریخ ہے، فیس دینی ہے 500 روپے. ایک تو جب گھر میں آؤ تم لوگوں کے نئے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں ابا اگر کل اسکول کی فیس نہیں دی تو میرا اسکول سے نام کٹ جائے گا. نام کٹتا ہے نا تو کٹ جائے. جب گھر میں آؤ تم لوگوں کا نیا مطالبہ ہوتا ہے. مجھے پتا تھا تم یہی کہو گے. بیٹا کل اپنی ٹیچر کے پاس جانا اور ان کو بول دینا کہ ہم یتیم ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. ہاں ہاں بول دینا، بلکہ اسکول کی جو ڈیسک ہوتی ہے نا اس پہ کھڑے ہو کے بولنا کہ میری ماں نے بولا ہے کہ میں یتیم ہوں. بہو یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ صحیح تو کہہ رہی ہوں میں. ایک چیز کی کمی تھی جو آج اس آدمی نے پوری کر دی. بچے اسکول جانے کے لیے ترس رہے ہیں اور یہ سارے پیسے نشے میں اڑا دیتا ہے. بکواس بند کر. خبردار جو تم نے میری بہو پہ ہاتھ اٹھایا، بدتمیز. ہاں اب میں بدتمیز ہو گیا، سمجھے نا؟ میں ہوں ہی برا، پورے گھر کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں میں، اس کے باوجود مجھے یہ صلہ مل رہا ہے، مجھے برا بلا کہا جا رہا ہے. مجھے نہیں رہنا. اماں تم بھی کان کھول کے سن لو، اب چلو تم لوگ اس گھر میں، جا رہا ہوں میں اس گھر سے. عرفان انتہائی غصے کے عالم میں گھر سے باہر نکلا تو کیچڑ اور پانی میں پھسل کر گر گیا. ماں اور بیوی سے جھگڑے کے بعد عرفان موچی نے الگ گھر کرائے پر لے لیا تھا. اسے یقین تھا کہ اس کا گھر اس کی ماں تباہ کر رہی تھی. بیوی کو اس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ ماں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی. شبیر نے دیکھا کہ ایک گاڑی پر مختصر سا سامان لادا جا چکا تھا. عرفان اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں تھا اور اس کی بیوی دروازے پر اپنی ساس کے ساتھ تھی. عرفان غصے میں باولا ہو چکا تھا. ابے بھائی جلدی کر لو، کیا ہوائی جہاز منگاؤ تم لوگوں کے لیے؟
जल्दी करो, गाड़ी खड़ी हुई है। शाजिया की सास ने बहू को गले लगाया और ज़ारो कतार रोती रही। अबे आजा भाई, कहाँ रह गई? फिर शाजिया शौहर के खौफ से जल्दी से घर से बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी रवाना हो गई और शाजिया की सास बेचारगी से उन्हें जाता देखती रही। उसे अपने पोते पोतियां याद आ रहे थे। दादी, जब मैं बड़ा होके पैसे कमाऊंगा ना, फिर मैं आपको बहुत अच्छी सी ऐनक बनवा के दूंगा। अरे मेरा बच्चा जीता रहे, मैं कुर्बान, खुश रहो। अच्छा दादी, ये बताएं, पापा कह रहे थे जब हम नया घर लेंगे आप आएंगी ना? पता नहीं बेटा, लेकिन बस मेरी तो यही दुआ है कि तुम लोग जहाँ रहो खुश रहो। इसी दौरान जोरदार बिजली कड़की और शाजिया की सास ने दरवाजा बंद कर दिया। इरफान को बीवी बच्चों समेत गए हुए कई दिन हो गए थे। दादी पोते पोतियों के लिए तड़प रही थी, लेकिन बेटे के खौफ से वो उनसे मिलने नहीं जा सकती थी। फिर एक दिन उसने हिम्मत की और पोते पोतियों से मिलने चली गई। शब्बीर ने देखा कि इरफान घर से निकलते वक्त अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा था। अच्छा शाजिया, मैं काम पे जा रहा हूँ और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मुझे मेरी माँ इस घर में बिल्कुल नजर नहीं आनी चाहिए। अगर वो आए ना तो दरवाजा नहीं खोलना और तुम भी उसको बुलाने की कोशिश नहीं करना। अगर मुझे इस घर में नजर आ गई ना, खुदा की कसम मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, ये बता रहा हूँ। मेरी बात तो सुने आप, किस तरह की बातें कर रही हैं? अगर यहाँ पर उनके पोता पोती रहते हैं और वो माँ है तुम्हारी। अरे माँ नहीं है मेरी, वो डायन है, डायन। पूरे घर को बर्बाद कर दिया उसने, बस मैंने तुम्हें बोल दिया है। इरफान बीवी को सख्ती से हिदायत देकर घर से बाहर निकल गया और थोड़ी ही देर में शब्बीर ने देखा कि इरफान की मां डरते डराते अपने बेटे के दरवाजे पर पहुंची। दस्तक पर दरवाजा बहू ने खोला तो खासी खौफजदा दिखाई दी। अरे वाह, वो अम्मा, बात ये है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने मना किया था कि आप यहाँ नहीं आए। यासीन, सना, जल्दी आओ, दादी आई है। सलाम दादी, आप यहाँ पे क्यों नहीं आती? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो जीते रहो। ये बताओ कि तुम्हारी अब बाप से लड़ाई तो नहीं होती? लड़ाई क्या, वो तो नशे में पागल ही हो गया है और आपसे मिलने से भी रोकता है हम लोगों को। शाजिया, शाजिया। इसी दौरान इरफान अचानक घर पलटा तो माँ को देखकर उसका पारा चढ़ गया। जब मैंने तुमको मना किया था कि ये डायन इस घर में नहीं आनी चाहिए, तुमने क्यों बुलाया इसको? किस तरह की बातें कर रहे हो? ये माँ है तुम्हारी। ये नहीं जाएंगे यहाँ से। ये माँ नहीं है, डायन नहीं है। बेटा गुस्सा मत कर, मैं खुद आई हूँ और बच्चों की मोहब्बत में आई हूँ। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, कोई डायन नहीं हूँ। अच्छा तू गुस्सा नहीं कर, मैं जा रही हूँ, मैं चली जाती हूँ बेटा। नहीं माँ, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। अम्मी नहीं जाएंगी। बस बंद करो दोनों अपनी ड्रामेबाजी। अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम दोनों को। तुम लोगों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। इसके बाद अचानक घर में अंधेरा सा छा गया और फायरिंग की आवाज सुनाई दी। बदबख्त नशेई बेटे ने मां से मिलने पर अपनी बीवी को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया था और कमसिन बेटे को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया था और खुद कहीं रूपोश हो गया था। कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चला कि वो गांव में मौजूद था। पुलिस ने उसे घेरे में ले लिया, लेकिन मुबैना तौर पर खुद को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसने खुद को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये है वो घर जहां मुल्जिम रूपोश था। महल्ले पड़ोस के लोग ये सारा मंजर देख रहे थे। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। यही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि वो इस वक्त किसी के घर में है, तो हमने फौरी तौर पे उस घर को गार्डन कर लिया। इसके साथ मुज़ाकरात किए कि भाई आप गिरफ्तारी दे दें, पिस्टल फेंक दें। इसने कहा जी मैंने नहीं पिस्टल फेंकना। जब हमने इसको गार्डन कर लिया, भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो फिर इसने अपने आप को फायर मार लिया। पिस्टल का फायर है, आर पार हो गया है कि ये किला से ये रेफर हो गया है गुजरांवाला, तो वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं।
और जो फर्दर कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। शब्बीर ने यह मंजर भी देखा कि कमसिन बेटा जख्मी था, उसकी टांग में गोली लगी थी और उसकी जान बचाने की कोशिश की जा रही थी। ये है वो मनाजिर। इस अफसोसनाक वाक़े पर महल्ले पड़ोस वाले भी दंग थे। अरफान का अपनी बेगम शाजिद अक्सर झगड़ा रहता था और ये अरफान अपने वालिदा से झगड़कर भी इधर अलग शिफ्ट हुए थे, लेकिन अहले मलाइल काफी समझाते थे, ये इनका झगड़ा मामूल बन चुका था। फिर एक दिन इसने तैश में आके अपनी बेगम को कत्ल कर दिया, फिर ये फरार हो गया और फिर काफी दिन बाद जब वापस आया तो पुलिस को पता चला, पुलिस ने इसे गिरफ्तारी के लिए कहा, फिर इसने खुदकुशी कर दी। तो इसकी 5 बेटियां थी, एक बेटा था। तो मैं समझता हूँ कि जब इंसान साहब औलाद हो और इस हालत में हो तो सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, ना कि तैश में आकर कोई बड़ा कदम उठाओगे। शब्बीर ने किला दीदार सिंह में पेश आने वाले इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। शब्बीर का कहना है कि नशे की लत ने न सिर्फ रिश्तों का एहतराम खत्म कर दिया था, बल्कि एक घर को भी तबाह कर दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सफेद पोशी का अतीक साहब, आप हमारी कंपनी के सरमाया थे। मुझे दिली अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कोई बात नहीं सर, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और हाँ, जाते हुए यासीन साहब से अपने ड्यूज ले लीजिएगा। ठीक है सर। फैसलाबाद समंदरी में थाना सरगोधा रोड के इलाके मोहल्ला महमूदाबाद का 50 साला रिहायशी एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री में बतौर सेल्समैन काम करता था। बीवी बीमार थी, 17 साला बेटी फर्स्ट ईयर की तालिबा थी, जबकि 12 साला बेटी भी जेर तालीम थी। गुज़िश्ता 15 बरसों से किराए के मकान में मुकीम थे। मोहल्ले पड़ोस वाले उसके पूरे घर की इज्जत करते थे। बेटियां और बीवी भी नेक नाम थी। अचानक नौकरी खत्म होने के बाद अतीक पर माली बोझ बढ़ गया था और वो खासा फिक्रमंद था, लेकिन अपना भरम कायम रखे हुए था। शब्बीर ने देखा कि अतीक की 17 साला बेटी पढ़ाई कर रही थी, बराबर ही में उसकी मां सो रही थी। अब्बू का? अम्मी अब्बू उस कमरे में लेटे हुए हैं। बेटा, अब्बू को बुला, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। जी अम्मी, मैं बुला के लाती हूँ। अलिशबा दौड़ी दौड़ी बाप के कमरे में चली गई। धमक से बाप की आंख खुल गई। अब्बू? जी बेटा बोलो। अब्बू, वो अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, वो कह रही है मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। चलो चलो, मैं देखता हूँ। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे सांस नहीं है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अलीशा, बेटा अपनी माँ की देखभाल करो, मैं सवारी का इंतजाम करके आता हूँ। इतनी देर में छोटी बेटी भी आ गई। अम्मी, क्या हुआ है आपको? मेरी बच्ची, परेशान नहीं हो, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। अम्मी, लगता है अब गाड़ी ले आए। दोनों बहनें सहारा देकर मां को नीचे उतार रही थी कि आधी सीढ़ियों पर ही शौहर ने बीवी को सहारा दिया और नीचे ले गया। नौकरी छूटने के बाद दफ्तर से जो थोड़े बहुत पैसे मिले थे, वो बीवी की बीमारी पर खर्च हो गए। 2-3 माह का किराया चढ़ा हुआ था, वो अदा किया गया।
फिर एक दिन अतीक की बीवी अपनी 2 जवान बेटियों को बाप के सहारे पर छोड़कर चल बसी और अतीक बिल्कुल तन्हा होकर रह गया। अतीक अपनी 2 बेटियों के साथ जैसे तैसे जिंदगी के दिन गुजारता रहा। बेटियां भी सब्र सुकून वाली थीं। उन्हें पता था कि बाप के माली हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे, इसलिए कोई फरमाइश तो दरकिनार कॉलेज और स्कूल की फीस तक का तकाजा नहीं करती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुबह हुई तो अतीक की आंख खुल गई थी। मुंह धोने के लिए सिंक के सामने खड़ा हुआ तो साबुन का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था। अतीक ने साबुन का टुकड़ा उठाया, लेकिन ये सोचकर वापस रख दिया कि बेटियां उससे मुंह धो लेंगी। वो अपने चेहरे पर पानी का छींटा मार कर निकल आया, खूंटी पर टंगी कमीज पहनी, जूतों को कपड़े से साफ किया और किचन में पहुंच गया। चाय बनाने के लिए दूध और पत्ती चेक की तो वो बहुत कम थी। रात की 1.5-2 रोटियां मौजूद थीं। उसने चाय बनाने का इरादा तर्क कर दिया और रोटियां भी अपनी बेटियों के लिए छोड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। घर के बाहर मालिक मकान से मुलाकात हो गई। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई, आज सुबह सुबह खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। जी वो एक इंटरव्यू के सिलसिले में जा रहा था बस। भाई अल्लाह पाक आपको मुबारक करे। बैठे बैठे। वो अतीक भाई एक बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोले, क्या बात है? अतीक भाई 1,40,000 रुपये किराया हो गया आपका, और इस महीने का वादा किया था आपने। अरे आप फिक्र मत करें, मुझे याद है और चेक भी आ गया है मेरे पास, लेकिन एक मसला हो गया है। वो ऑफिस वालों ने जो चेक दिया था, बैंक वाले उसके दस्तखत पर एतराज कर रहे हैं। मैं उसी सिलसिले में जा रहा हूँ बस। देख लें अतीक भाई, अब क्या कह सकता हूँ मैं आपको। अरे आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह आज आपका काम जरूर हो जाएगा। इंशाल्लाह। चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अतीक पढ़ा लिखा सफेद पोश इज्जतदार मजदूर था। वो हाथ फैलाने के सिवा कोई भी काम कर सकता था। अब सर पर 1.5 लाख घर के किराए का बोझ था। उसे अपनी इज्जत खाक में मिलती नजर आ रही थी। फिर उसे एक रोशनी की किरण नजर आई। उसका बरादर निस्बती खुशहाल था और अतीक उससे बेतकल्लुफ भी था। अतीक ने फैसला कर लिया कि वो अपने बरादर निस्बती से कर्ज की बात करेगा। शब्बीर ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर अतीक, उसकी 2 बेटियां और बरादर निस्बती मौजूद थे और अतीक की बहन उन्हें खाना खिला रही थी। अरे अतीक भाई, माशाल्लाह क्या बात है, आप तो दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। कहीं दूसरी शादी करने का इरादा तो नहीं है? नहीं पप्पा, हमारे अब्बा ऐसे नहीं है। अरे अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे वो अर्शद भाई, सुना है कि आपने अपना ड्राइंग रूम बड़ा अच्छा सेट कर लिया है। हाँ हाँ, अरे मैंने आपको बताया तो था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए 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 देखते हैं। अतीक अपने बरादर निस्बती से कुछ कहने के लिए उसे बाहर ले गया। उधर अतीक की बहन अपनी भांजियों से गपशप करती रही। देखिए ये सेटिंग की है मैंने, कैसी लग रही है? अरे वाह, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ अतीक भाई, क्या बात है, मुझे आप कुछ परेशान परेशान से लग रहे हैं। सब खैरियत तो है? अरे नहीं अर्शद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। परेशानी तो मेरे पास आकर भाग जाती है। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? चलिए आइए बैठ के बातें करते हैं। आइए। अतीक कोशिश के बावजूद अपने बरादर निस्बती को अपना मसला नहीं बता सका। वो एक रोशनी की किरण जो उसकी तारीख दुनिया में एक लम्हे के लिए पैदा हुई थी, बुझ चुकी थी। 1,40,000 रुपए मकान का किराया, मालिक मकान के तेवर और तंजिया निगाहें उसके दिल में तीर की तरह चुभती थीं। बरादर निस्बती के घर से वापसी के बाद शब्बीर ने उस रात अतीक को अजीबो गरीब आलम में देखा। शब्बीर ने देखा कि कमरे में नीम तारीकी थी और वो मेज पर झुका हुआ कुछ लिख रहा था, तो उसके कपड़े सुर्खी माइल हो रहे थे। फिर शब्बीर ने देखा कि अतीक ने निगाहें कागज से हटा ली। उसकी आंखों में खालीपन था। उसने पर्चा एक तरफ रखा और फिर छत की तरफ देखने लगा। दूसरी सुबह शब्बीर ने देखा कि अतीक का बरादर निस्बती अतीक का वॉइस मैसेज सुन रहा था और फिर उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। अतीक ने अपने बरादर निस्बती को इत्तला दी थी कि उसने बदतरीन माशी दबाव की वजह से अपनी 2 जवान बेटियों के गले काट दिए थे और अब वो खुद भी फंदे से लटककर अपनी जान दे रहा था। जब तक अतीक का बरादर निस्बती अतीक के घर पहुंचा, सारा खेल भी खत्म हो चुका था। ये है वो पर्चा
जो अतीक ने खून आलूद हाथों से लिखा था, और ये है वो मैसेज। शाहरियार में हालात तो तंग आ गए ना, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਜਤਮਾਈ ਕਬਰ ਕਰਕੇ इज्तमाई कबर ही दफना देना, किसी भैन भाई का आसान न लेना। हुआ की रात वो मेरी तरफ आए, बच्चियाँ भी साथ थी, 11-12 बजे तक रहे, खाना वगैरह खाया, तो खामोश बैठे थे। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, काम का क्या बना के, उसने कहा काम हो जाएगा, किसी से मैंने कहा है चंद दिन तक अरेंज हो जाएगा नौकरी का। मैंने महसूस किया खामोश थे, उन्होंने कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन ना जाने कौन सी चीज ने उनको रोके रखा। जिस तरह उन्होंने वसीयत की थी ना, उनकी वसीयत के मुताबिक सारी चीजें, घर का सारा सामान 1 to all सारी चीजें हम लोगों ने, मैंने ईदी वालों के साथ हम लोगों ने कॉन्टेक्ट करके उनको आज बुलाया। आज हर चीज उनके घर की जिस तरह उन्होंने वसीयत की थी उनके हैंड ओवर कर दी, सारा सामान ईदी वालों के हैंड ओवर कर दिया, उनको दे दिया। जी बहुत इसका दुख हुआ हम सबको, मोहल्ले वालों को। सिर्फ क्या है, ये सिर्फ ना एक सफेद पोशी दिखा गया हम लोगों को सबको। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। अतीक का सामान उसकी वसीयत के मुताबिक ईदी वालों के सुपुर्द कर दिया गया था। उनको जो है पहले वो छुरी से ज़िबा किया और उसके बाद उसने जो है ना एक वॉइस नोट छोड़ा जिसमें उसने कहा कि जी मैं अपने जो हालात से तंग आकर और जो है ना ये इकदाम ले रहा हूँ और इसमें मैंने अपनी बेटियों को ज़िबा कर दिया और मैं खुद अब खुद जो है वो खुदकशी करने लगा हूँ। और साथ ही उसने एक हैंड रिटन नोट भी वहाँ पे छोड़ा, ये दोनों चीज़ें वहाँ पे बरामद हुई। तो बज़ाहिर यही है कि हालात से तंग आकर उसने ये किया। तो चेक करने पे ये भी पता चला कि वो जो है मुलाजमत से भी कोई 3-1 माह पहले मुलाजमत से फारिग हो चुका था और उसके अलावा जिस मकान में रहता था किराए का, उसका किराया भी 1 साल से उसने नहीं दिया, जो कि 1 लाख से ऊपर है। तो बिल्कुल इसी तरह अब तक इन्वेस्टिगेशन में भी यही चीज़ सामने आई है। बाकी फोरेंसिक में काफ़ी सारी चीज़ें हमने भेजी हैं, तो अगर कोई और ऐसे शिकायत या कोई चीज़ सामने आएगी तो मज़ीद इसके ऊपर जो है ना आपको अपडेट करें। शब्बीर को इस पूरे वाक़े के बाद चुप सी लग गई है। उसने बस एक सवाल किया है कि अतीक और उसकी बेटियों की मौत का जिम्मेदार कौन है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि इंसानों से प्यार, उनके दुख दर्द को समझना और फिर इंसानों की मुश्किलात कम करने के लिए बेलौस खिदमत का जज्बा ही इंसानियत की रूह है। ये सादा सी बात बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से फारिग तहसील लोगों की समझ में आती तो है, लेकिन कम ही लोग ऐसे होते हैं जो इस पर अमल भी करते हैं। कराची से 200 किलोमीटर दूर जिला बदीन की तहसील मातली के एक दूर दराज गाँव में शब्बीर ने ऐसी औरत को देखा है जो ये चाहती है कि उसके इलाके के बच्चे माजूरी का शिकार होने से बच जाएं। 47 साला अमीना अपने मकसद के हुसूल के लिए जो कुछ करती है, हर किसी के बस की बात नहीं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अमीना एक पोलियो वर्कर है और रहती है मातली शहर के एक दूर दराज गांव जानी खास खेली में, जहां पीने का साफ पानी मुयस्सर है और ना ही बिजली का कोई माकूल इंतजाम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो गांव वालों ने शायद नाम ही न सुना हो। 22 बरस पहले अमीना को किसी न किसी तरह पोलियो वर्कर की नौकरी मिल गई थी, लेकिन सवाल ये था कि दूर दराज इलाकों तक रसाई कैसे हासिल की जाए। अमीना ने हिम्मत नहीं हारी, वो किसी न किसी तरह पोलियो सेंटर जाती और फिर वहां से किसी भी ट्रांसपोर्ट के बगैर मीलों का सफर पैदल तय करके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाती रही। अमीना अपनी 6 बहनों में से 2 की शादियां कर चुकी हैं और पूरे कुंबे की किफालत करती हैं, इसीलिए आज तक अपनी शादी नहीं कर सकी। बगैर ट्रांसपोर्ट दूर दराज इलाकों में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना अमीना के लिए दुश्वार होता जा रहा था और अमीना को लग रहा था कि वो ज्यादा दिनों तक ये काम नहीं कर सकेगी। अमीना को न सिर्फ घर की किफालत की फिक्र थी, बल्कि उन्हें अपने इलाके के बच्चों से भी प्यार था। वो हर हाल में अपना काम जारी रखना चाहती थी। फिर एक दिन उन्होंने वालिद के मशवरे पर एक मोटरसाइकिल खरीद ली और मोहल्ले के एक बच्चे से मोटरसाइकिल चलाना भी सीख ली। शब्बीर ये देखकर दंग रह गया कि अमीना हर रोज घर से मोटरसाइकिल पर निकलती और दूर दराज के इलाकों में जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाती। ये है वो मनाजिर।
अमीना ने मोटरसाइकिल पर आना जाना शुरू किया तो वो लोगों के मजाक का निशाना बन गई। लोग तरह तरह की बातें करते थे, आते जाते अमीना पर फिक्रे कसते थे, लेकिन अमीना ने हर रुकावट को मुस्कुराते हुए कबूल किया और अपना काम जारी रखा। जरा ये मंजर देखिए, अमीना किस महारत और हौसले से मोटरसाइकिल चलाते हुए अपने काम पर जा रही है। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के बाद वो बाकायदा घरों पर निशानी भी लगाती है और वापस आकर अपने दफ्तर में रिपोर्ट भी करती है। जानी खास खैली जैसे दूर दराज गाँव में जहाँ लड़कियों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती, वहाँ अमीना के वालिद ने उन्हें इंटरमीडिएट तक पढ़ाया था, जिसके बाद वो पोलियो वर्कर बन गई थी। अमीना ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। मैं LSW, मैं अपनी ड्यूटी पे बाइक पे जाती हूँ और बाइक पे आती हूँ। बीच रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें भी होती है, फिर मैं हिम्मत नहीं हारने वाली और मैं अपने काम ड्यूटी सर अंजाम अच्छी तरह से देती। रोजाना 20 से 25 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर रिश्ते हलाल कमाने वाली अमीना 16 बरस तक पैदल ही दूर दराज इलाकों में पोलियो के कतरे पिलाने जाती रही और फिर उसने गांव वालों के ताने को खातिर में न लाकर मोटरसाइकिल ले ली। गांव के लोग उसे मोटरसाइकिल सिखाने पर भी तैयार नहीं थे, जिस पर गांव के एक बच्चे ने अपने घर वालों से छुपकर अमीना को मोटरसाइकिल सिखा दी। ये मनाजिर एक बार फिर देख लीजिए। शब्बीर ने बाहिम्मत अमीना को खराज तहसीन पेश किया है। अमीना एक तरह से गांव देहात की बच्चियों के लिए रोल मॉडल भी है। शब्बीर का कहना है औरतों को रिस्क हलाल कमाने का उतना ही हक है जितना मर्दों को। शब्बीर ने घर से बाहर निकलकर रिस्क हलाल कमाने वाली औरतों को तंज का निशाना बनाने वालों की मजम्मत की है और कहा है कि औरतों की तालीम और तरक्की के रास्ते में रुकावटें न खड़ी की जाएं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। रहीम यार खान थाना कोट समाबा की हुदूद में शब्बीर ने एक ऐसी लड़की को देखा है जो 27 लाख रुपए की खतीर रकम लेकर घूम रही थी। ये पैसे कहां से आए और कहां चले गए, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि मुताल्लिका थाने के SHO के सामने मेज पर नोटों की गड्डियां पड़ी थीं और SHO काफी मुतमईन दिखाई दे रहा था। क्या ये मुबैना रिश्वत की रकम थी या पुलिस ने कोई रिकवरी की थी? मामला कुछ उलझा हुआ सा था। शब्बीर ने तहकीकात की तो पता चला कि ये रकम तैयबा नामी कॉलेज की एक लड़की के पास थी जो अब पुलिस की मेज पर नजर आ रही थी। तैयबा के बारे में शब्बीर को पता चला कि वो एक मतमूल जमींदार की बेटी है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान रहती थी। शब्बीर अजीब सी उलझन का शिकार था कि क्या तैयबा ने जरूरतें पूरी न होने पर किसी की रकम चोरी कर ली थी और फिर चोरी पकड़ी भी गई और पुलिस ने रकम बरामद कर ली थी। ये एक सवालिया निशान था। लेकिन जब शब्बीर मजीद मालूमात के लिए थाने पहुंचा तो कहानी इसके बिल्कुल बरक्स और अछूती नजर आई। बात यह थी कि तैयबा का इल्जाम था कि उसका जमींदार बाप, जो मतमूल आमदनी का मालिक था, निहायत कंजूस था और बेटी की तालीम और घर के अखराजात में कंजूसी करता था। एक दिन तैयबा बाप की कंजूसी के खिलाफ शिकायत करने के लिए थाने पहुंच गई और बाप की अलमारी से सारी जमा पूंजी निकालकर थानेदार के आगे ढेर करती। ये रकम जो आप देख रहे हैं चोरी की नहीं है, बल्कि एक नाराज बेटी ने बाप की कंजूसी खत्म कराने के लिए ये इकदाम उठाया। पुलिस के बारे में एक आम तासुर यही है कि ये अहलकार मुबैना तौर पर रिश्वत के आदी होते हैं, लेकिन SHO समाबा एक जिम्मेदार और शरीफ इंसान साबित हुए। उन्होंने तैयबा को तसल्ली दी और तैयबा के वालिद को थाने बुलाकर ताकीद भी कर दी। बच्ची आई है मेरे पास थाने 27 लाख रुपया लेकर। इनका मौक़िफ़ है कि इनके पास 27 लाख रुपए हैं और इनके वालिद की 8 एकड़ ज़मीन भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इनका वालिद जो है घर पे प्रॉपर खर्चा नहीं देता, अपनी औलाद पर खर्च नहीं करता और इंतहाई कंजूसी करता है और इनके घर में खाके चल रहे हैं। मैंने इस शिकायत पर इनके वालिद साहब को बुलाया है और इनसे वादा लिया है कि आइंदा जो है ये प्रॉपर अपनी औलाद पे खर्च करेंगे, उनको प्रॉपर खर्चा देंगे। मैंने भाई वादा किया अपने बच्चों का पूरा खर्चा देंगा और इन्होंने पूरी तकलीफ में हर चीज़ होगी, कोई चीज़ को टेंशन नहीं आने देना। मैं अपनी कमाई जो भी है ना तो इन्हें कुर्बान करा। तैयबा के वालिद का भी कहना गलत नहीं था कि वो अपने बच्चों ही के लिए पैसे जमा कर रहा था। शब्बीर ने SHO समाबा की तारीफ की है
کہ انہوں نے کسی لالچ میں آئے بغیر اس مسئلے کو خوبصورتی سے نمٹا دیا۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اسی وقت صرف ایکسپریس نیوز پر۔ دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو SMS کریں SAB لکھ کر سپیس دیں اور اپنا میسج اپنے شہر اور نام کے ساتھ 247 پر بھیج دیں۔ فیکس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 021-3580-3820۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے 5 ایکسپریس وے آف کرنگی روڈ، کراچی۔ ایکسپریس نیوز، شبیر تو دیکھے گا۔